ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. लास्ट लेक्चर में वी हैव कवर्ड IUPAC nomenclature. Now first preparation method is reduction of nitro compounds. So nitro compound means NO2 is there. Now NO2 is converted into NH2. So what is that? There is removal of oxygen and addition of hydrogen. We have RNO2, so that will give RNH2 along with 2H2O. So we have to add 6 hydrogens. Simple enough. RNO2 plus 6 hydrogens to give RNH2 and 2H2O. तो ये देखो रिएक्शन क्या है. पहला एलिफेटिक हो या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दें तो भी आप वी विल गेट द प्रोडक्ट एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन along with water. तो ये हो गया पहला. फॉर एग्जाम्पल यू हैव नाइट्रोइथेन and we get ethanamine. Simply NO2 is reduced to NH2. Why it is called reduction? Because there is a removal of oxygen and addition of hydrogen. Same is the case with nitrobenzene, catalytic hydrogenation, and we get aniline along with water. Second is with an active metal like iron, tin, zinc, and concentrated HCl. So see SnHCl, FeHCl you can use, but this method Fe plus HCl method is the best method to convert nitro compound into amine. See nitroethane to give ethanamine or nitrobenzene to aniline. So see a mixture of SnCl2 and HCl has also been used for the reduction of aromatic nitro compounds, and a reduction with iron scrap and HCl that is preferred over SnHCl because we use scrap iron and we can get FeCl2 which can gets hydrolyzed to give back used HCl. So release HCl during the reaction. And thus only a small amount of HCl is required to initiate the reaction because in between it is initiated. Okay. Now with lithium aluminum hydride. So nitroethane, it is reduced to ethanamine in the presence of lithium aluminum hydride and dry ether or nitrobenzene to say if we use lithium aluminum hydride with aliphatic nitro compound we get amine, but with nitrobenzene we get azobenzene. This is important for competitive exams. It is important that with lithium aluminum hydride if we use nitroalkane we get alkanamine, but with the aromatic nitro compound that is nitrobenzene when it is reduced with lithium aluminum hydride we will get azobenzene. Now Hoffman's ammonolysis method. Now in Hoffman's ammonolysis method we have ammonia. Ammonia react with alkyl halide and we get primary amine salt, and in excess of ammonia we get primary amine along with ammonium halide. See first with ammonia alkyl halide we get primary amine,
Then primary amine further react with alkyl halide when alkyl halide is in excess. See, reaction is over at this point if ammonia is in excess. If ammonia is in excess, then primary amine is the major product. Primary amine is the major product. If alkyl halide is in excess, then first we get secondary amine, further we get tertiary amine, and ultimately we get quaternary ammonium salt. Primary amine with alkyl halide, we get secondary amine salt and then secondary amine. Secondary amine react with alkyl halide, we get tertiary amine salt and tertiary amine. Tertiary amine further react with alkyl halide and we get quaternary ammonium salt. So we get mixture of product when alkyl halide is in excess. But if we take ammonia in excess, then primary amine is the major product. This is the Hoffman's homolysis of alkyl halides usually gives a mixture of primary, secondary, tertiary amines along with some quaternary ammonium halides. So, what is the limitation of this method? This method cannot be used for the preparation of aryl amines, means aniline, since aryl halides are much less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reaction. Because if we use aryl halide, it is very difficult to break this bond because this bond will acquire double bond character. That's why aryl halide cannot be used, and for that reason aryl amines cannot be prepared by Hoffman homolysis reaction. In Hoffman homolysis method, we will get aliphatic amines, primary, secondary, tertiary, quaternary, but aromatic amines cannot be prepared. That is the limitation. Why is it so? Because aryl halides, they have the CX double bond character, and because of this double bond character, aryl halides are much less reactive. Okay. Now from nitriles and isonitriles. So by reduction of nitriles, what is nitrile means? Cyanides. So RCN, if we add hydrogen on both sides, RCH2 and H2, that means is a reduction. So reduction takes place with H2 Raney nickel, lithium aluminum hydride, or sodium amalgam ethanol. And this one, if we use sodium amalgam and ethanol, this reaction is called Mendius reduction. See the example, methyl cyanide, or we can say ethane nitrile. What is the name of this compound? Ethane nitrile, and we get ethanamine. Same with the benzonitrile with H2 Raney nickel or lithium aluminum hydride, we get benzyl amine. So we can convert alkyl halide into amine with one carbon atom more. How to do it? First we take alkyl halide and treat it with KCl. So we get alkyl cyanide, and then reduction with lithium aluminum hydride in the presence of ether and water. So we get primary amine. Then next is isocyanides, or we call it as carbyl amines. So alkyl nitriles or isocyanides, see H2 Raney nickel, ED or lithium aluminum hydride ether. So we get RNHCH and methyl
alkylamine, alkanamine or. Okay. Same here. See, N is attached to H and CH3. That is, it is N-ethyl. Sorry, N-ethyl. Sorry, it is wrong actually. It should be N-methyl because parent chain is one with more number of carbon. So N-methyl ethanamine. N-methyl ethanamine. So what is its limitation? This method can be used only for the preparation of secondary amines because N is in between alkyl and carbon. See, so this method can be used only for the preparation of secondary amine in which one of the alkyl group is methyl. It is always methyl because that NC, that C is converted into CH3. Reduction of amides. Amides means CONH2. So this CO is reduced to CH2 in the presence of lithium aluminum hydride, ether or water. Same is CO. Okay, further give CH2, CO, CH2. So primary, secondary, tertiary, all the amines can be prepared from the amides. So this is the way. CO is converted into CH2 in the presence of lithium aluminum hydride, which is the reducing agent. You know, most commonly used in organic chemistry. It is expensive. Though it is expensive, yes, this is very, very important. Gabriel thalamide reaction. So in Gabriel thalamide reaction, yes, Gabriel thalamide reaction or Gabriel thalamide synthesis is used to prepare primary aliphatic amines. The best method to prepare primary aliphatic amine. See, this is a convenient method for the preparation of pure aliphatic and aralkyl amines. So first of all, this thalamide we will use in the presence of KOH. So, you know, this is acting as acid. Thalamide is acid and KOH is base. So first acid base reaction takes place. We get salt and water. Water is removed and this H is replaced by K. So potassium thalamide we will get. Then potassium thalamide is treated with alkyl halide. So I stressed on this point, alkyl halide. Aryl halide cannot be used. So we get an ethyl thalamide. So tell me beta, why not we use aryl halide? क्यों नहीं यूज करते हैं aryl halide यहाँ पे? बता सकते हो? aryl halide क्यों नहीं यूज करते हैं? बेटा क्योंकि aryl halide में देखो ये CI बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा पहले एंड यू नो aryl halide में CX बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ये भी बताया ना कि इफ वी यूज aryl halide, so this aryl halide, sorry, if we use aryl halide, so in aryl halide CX bond acquired double bond character.
Okay, and therefore it is difficult to break it. So an alkyl halimide can be easily prepared, and then on hydrolysis, acid catalyzed hydrolysis, we get phthalic acid along with ethyl amine. Get phthalic acid along with ethyl amine, or we can say it as ethanamine. And how do we prepare phthalimide? See, phthalic acid first treated with ammonium, we get ammonium salt. On further heating, we get phthalimide. On strong heating, we get phthalimide. This we have done in previous section. Now, what are its limitations? So, aromatic primary amines such as aniline, toluidine cannot be prepared by this method, because for that we have to use aryl halide, and in aryl halide CX bond is difficult to break, because the aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with potassium phthalimide under mild condition. See, because of this double bond character. Yes, Hoffman bromide reaction, or we can say Hoffman bromide degradation reaction. In this reaction, what we do is C double bond O group is removed. RCONH2 react with Br2 and KOH. So we get primary amine, potassium carbonate, potassium bromide, and water. See, CH3, CH2, CONH2 react with bromine and potassium hydroxide. So we get ethanamine along with potassium carbonate, potassium bromide, and water. See, benzamide, Br2 and KOH. Simple CO group is removed, means we get amine with one carbon atom less. If we treat with KCN, we get amine with one carbon atom more. Here we will get amine with one carbon atom less. So this reaction is widely used for stepping down or descent of homolog series. This is the mechanism of this reaction. CBSE में ये mechanism नहीं है, but कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट. उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, बोर्ड के हिसाब से देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस मैकेनिज्म. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये प्राइमरी अमाइड है अपने पास, उसको ब्रोमीन और क्यूएस से करते हैं हम. तो यहाँ का जो H है एक NH2 का, दैट इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन. N-bromo amide we will get. This N-bromo amide, then in the presence of base, this H as a positive is removed. So H2O remove हो जाएगा and we get this anion, N-bromo amide. और फिर Br नेगेटिव हटा दे तो ये बन गई बेटा नाइट्रीन, साइल नाइट्रीन, और उसकी रीअरेंजमेंट करते हैं तो वी गेट RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज अल्काइल आइसोसाइनेट. तो ये फर्स्ट हो गया N ब्रोमोअमाइड. सेकंड इसका इंटरमीडिएट एसाइल नाइट्रीन. थर्ड इंटरमीडिएट इज अल्काइल आइसोसाइनेट, और अल्काइल आइसोसाइनेट की बेसिक कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट प्राइमरी अमीन along with potassium carbonate. तो कई बार क्वेश्चन होता है कि इनमें कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट है. तो पहला इंटरमीडिएट है एन ब्रोमोमाइड, दूसरा है एसाइल नाइट्रीन, और तीसरा है अल्काइल आइसोसाइनेट. क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनोइक? See, there is step down of series, descent, there is decrease in number. होमोलॉग सीरीज के नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज. तो ऑब्वियसली दो कार्बन से एक कार्बन करना है, मतलब कार्बन कम करने.
तो कार्बन कम करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगानी पड़ेगी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज करना पड़ेगा। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज करने के लिए वी शुड हैव एमाइड एज द रिएक्टेंट। तो पहले आपको इथेनोइक एसिड को एमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे सोचा आपने, सोचने का वे आउट देख लो कि इथेनोइक एसिड था, बनाना था मिथेनोइक एसिड। 13.5 क्वेश्चन। तो पहले इथेनोइक को क्या करना पड़ेगा, आपको इथेनामाइड बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले ओइक से अपने एसिड क्लोराइड बना दिया, बेस्ट रेजेंट SOCl2, एसिड क्लोराइड को अमोनिया के एक्सेस में किया तो वी गेट एमाइड। देन एमाइड को फिर आप क्या कर दोगे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किया तो वी गेट मिथेनामाइन। बेटा एक कन्वर्जन क्लियर हुई आपको? यस बेटा, कन्वर्जन क्लियर हुई आपको ये, है ना? कि कैसे समझ में आया आपको कि क्या करना था, कि पहले आपको क्या करना था कि जैसे पढ़ा आपने इथेनोइक से मिथेनोइक, तो क्लियर हो गया कि एक कार्बन एटम हमें डिक्रीज करना है, ठीक है ना? अब एक कार्बन एटम अगर डिक्रीज करना है तो उसके लिए आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, एमाइड, और एसिड से एमाइड बना सकते हैं हम, ठीक है ना? हेक्सेन नाइट्राइल into 1 amino pentane। अगेन सेम केस, कार्बन 6 है और उसको 5 में कन्वर्ट करना है तो एमाइड बनाना पड़ेगा। एमाइड बनाना है तो आपको एसिड बनाना पड़ेगा, एसिड बनाना है तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दो, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट एसिड। CN is converted into COOH, और COOH को SOCl2 से करो तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा। एसिड क्लोराइड को अमोनिया से कर दो एक्सेस में तो एमाइड बन जाएगा। एमाइड को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कर दो तो बन जाएगा एमीन। तो 1 अमीनो पेंटेन और पेंटेनामाइन, पेंटेन 1 अमीन, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, पेंटेन 1 अमीन। तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, मिथेनोल टू इथेनोइक एसिड। अब कार्बन बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो आपको किससे करना पड़ेगा, KCN से, और KCN से करना है तो आपको हैलाइड चाहिए। हैलाइड को KCN से करोगे ना, अल्कोहल का डायरेक्ट KCN से रिएक्शन नहीं होता। तो अल्कोहल आपके पास है, आपने उसको क्लोराइड बना दिया, PCl5 यूज करो, PCl3 यूज करो, SOCl2 यूज करो, इट इज अप टू यू। आपको पता है मेथड्स टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हैलाइड। तो ये PCl5 यूज किया यहाँ पे, आप SOCl2 भी ले सकते हो। बन गया, अपने KCN से कर दिया अल्कोहलिक से, साइनाइड बन गया, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दो, वी गेट एसिड, दैट्स इट। सिर्फ की पॉइंट क्या था कि कार्बन एक बढ़ रहा है, तो वहां से हिंट मिल गया कि आपको KCN से करना है, और KCN से करना है तो KCN का रिएक्शन हैलाइड से होता है, तो अल्कोहल से पहले हैलाइड बनाना पड़ेगा। ऐसे करके आपको मतलब कड़ी जोड़नी है। नेक्स्ट, इथेनामाइन से मिथेनामाइन, अगेन द ट्विस्ट। इथ से मिथ, एक कार्बन कम करना है, कम करना है तो कौन सा रिएक्शन लगाना पड़ेगा, बोलो, कम करने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज करना पड़ेगा, वेरी गुड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगानी है तो आपको एमाइड चाहिए। एमाइड किससे बनता है, एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड किससे मिलता है, एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कार्बोक्सिलिक एसिड किससे मिलता है, अल्कोहल से। और अमीन से अल्कोहल बनाना हो तो वी विल यूज HNO2। ऐसे होता है रिएक्शन, देखो, RN
H2 HONO HNO2, तो ये H2O निकल जाता है, N2 और ROH, तो अल्कोहल मिल गया। अल्कोहल को KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम किया, एसिडिफाई किया, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 से किया, वी गेट एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के को अमोनिया इन एक्सेस में कर दिया, वी गेट एमाइड। और एमाइड को Br2 और KOH से कर दिया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, वी गेट CH3NH2। नेक्स्ट, इथेनोइक से प्रोपेनोइक। अगेन इथेनोइक है और बनाना है प्रोपेनोइक, मतलब किससे करेंगे, मैंने अभी बताया रूल। कार्बन एक बढ़ाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करना है आपको, वेरी गुड, KCN। और KCN यूज करना है तो आपको क्या चाहिए, हैलाइड। हैलाइड बनाना है तो आपको क्या चाहिए, अल्कोहल। और कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने अल्कोहल बना दी बाई रिडक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन है शायद, कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाना, सेकंड अल्कोहल बनाना, हाँ सेकंड चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अल्कोहल बना सकते हो बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो वो कर दिया, अल्कोहल बना दिया। फिर हैलाइड बना दिया SOCl2 से, हैलाइड से साइनाइड बना दिया बाय यूजिंग KCN। और KCN जैसे ही लगा आपने उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। मिथेनामाइन से इथेनामाइन, अगेन कार्बन बढ़ाने हैं, KCN यूज करना है। KCN यूज करना है तो आपको हैलाइड चाहिए, हैलाइड यूज करना है तो आपको अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल आप इससे बना सकते हो, अभी किया हमने। ये अमीन है, इसको HNO2 से किया तो अल्कोहल बन गया। अल्कोहल को आपने हैलाइड बनाया बाय यूजिंग SOCl2। हैलाइड को आपने साइनाइड से किया, KCN अल्कोहलिक से साइनाइड बन गया, और साइनाइड की कर दी रिडक्शन, वी विल गेट CH3CH2NH2, दैट्स इट। नाइट्रोमिथेन है आपके पास और आपको बनाना है डाई मिथाइल अमीन, मतलब कि नाइट्रोमिथेन से डाई मिथाइल अमीन। तो सबसे पहले तो अमीन नाइट्रोमिथेन से आप मिथाइल अमीन बना लो, अभी किया था स्टार्टिंग में कि बेस्ट रिएजेंट इज FeHCl, HCl यूज किया, वी गेट CH3NH2। और फिर उसकी कर दो रिएक्शन विद CH3I, तो H जो है वो I के साथ निकल जाएगा और H की जगह CH3 लग जाएगा, बन जाएगा N मिथाइल मिथेनामाइन, दैट्स इट। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक से इथेनोइक। यस अपने अनु, क्या की रिएक्शन क्या है इसमें, प्रोप से इथ बनाना है, क्या करना है आपको, प्रोप से इथ बनाना है तो क्या करना है, बोलो। कार्बन एटम बढ़ाने हैं कि कम करने हैं, यस बेटा, बोलो। कार्बन एटम को बढ़ाने हैं या कम करने हैं, तो प्रोपेनोइक में कितने कार्बन है, प्रणय, और इथेनोइक में, तो आपको 3 से 2 करने हैं। कौन सा रिएक्शन ऐसा कर सकता है कार्बन एटम कम करने वाला, कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड, और किसके साथ होता है वो, एमाइड, तो एमाइड के साथ। तो इसका मतलब एसिड से पहले एमाइड बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सीधा अमोनिया से कर दें, अमोनियम सॉल्ट बनेगा, फिर हीट करो तो एमाइड बन जाएगा। या पहले आप इसको क्लोराइड बना दो, एसिड क्लोराइड, फिर अमोनिया एक्सेस में करो, एमाइड बन जाएगा। एमाइड को Br2 KOH से करो तो बन जाएगा
अमीन, CO को निकाल दो, अमीन बनने के बाद HNO2 से करो और वी गेट अल्कोहल, और अल्कोहल जो है उसको कार्बोक्सिलिक बनाओ, दैट्स इट। इथेनोइक बनाना है ना, अमीन तो बन गई, तो अमीन से एसिड बनाना है, तो अमीन से अल्कोहल बनाओगे बाय यूजिंग HNO2, और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो, तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। तो पहला है कलर एंड ऑर्डर। तो बोलता है कि प्योर अमीन्स जो हैं वो कलरलेस होती है, बट डेवलप कलर कीप ऑन कीपिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो अमीन्स हैं, एरोमेटिक अमीन स्पेशली, दे आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर और बना देती हैं कलर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, और इसका फिशी ऑर्डर होता है एंड दे आर समवट टॉक्सिक। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से तो हमेशा ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि अमीन्स आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देयर बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन ही होंगी। और ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट पे, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो प्राइमरी अमीन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम, टर्शरी का उससे कम। क्यों ऐसा? क्योंकि प्राइमरी में 2 NH ग्रुप होंगे, सेकेंडरी में एक, और टर्शरी में कोई नहीं होगा। तो मतलब एक H अगर लगा भी देते हैं बाई चांस कि वाटर में है तो आयोनाइज हो जाएगा, तो भी फर्स्ट जो है प्राइमरी अमीन दैट विल फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सेकेंडरी विल फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड टर्शरी विल फॉर्म ओनली 1। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है इट इज मैक्सिमम इन प्राइमरी, दैट्स व्हाई boiling point of primary amine is more than secondary than tertiary of comparable molecular mass। molecular mass क्या होना चाहिए? comparable, like सी, एक लिखूं मैं CH3 CH2 CH2 NH2, दूसरा लिखूं CH3 CH2 NHCH3, और तीसरा लिखूं ये। ऑब्वियसली प्राइमरी का ज्यादा होगा, कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी का। मॉलिक्यूलर मास सेम है तीनों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में ज्यादा होगी, सेकेंडरी में उससे कम, टर्शरी में सबसे कम। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होता है, अल्कोहल का अमीन से और अमीन का हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो इवन वेपर फेज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी रहती है, डाइमर बना रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। अल्कोहल में उससे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसोसिएशन उससे कम होती है, और अमीन में उससे कम होती है। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी की बात करें तो देखो, लोअर अमीन्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ। ओके, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो स्मॉल साइज का होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बन जाती है। और जैसे जैसे साइज अल्काइल ग्रुप का बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बने बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, इसलिए सॉलिबिलिटी भी वाटर वाटर में डिक्रीज हो जाएगी एज हाइड्रोफोबिक पार्ट, अल्काइल पार्ट का साइज जो है दैट इंक्रीजेस। और अमीन्स जो है दे आर क्वाइट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है। और एरोमेटिक अमीन्स जो होती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एरोमेटिक अमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट से वो बहुत बड़ा होता है, दैट्स व्हाई
हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी वाटर के साथ नहीं बनती, इसलिए एरोमेटिक अमीन्स क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है इन वाटर। यस, 13.3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि जो इथाइल अमीन्स हैं वाटर में सॉल्युबल है बट एनिलीन इज नॉट। अभी बताया मैंने क्यों, क्योंकि इथाइल अमीन डिसॉल्व करती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट एनिलीन में क्या होता है ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट। अभी डिस्कस किया मैंने कि बड़ा हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक जिसको बोलते हैं हम, वाटर रिपेलिंग पार्ट, दैट इज लार्ज इन साइज एंड दैट्स व्हाई जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डिक्रीजेस कंसिडरेबली एंड हेंस aniline is insoluble in water. Yes, now increasing order of the boiling point, अभी कर रहे थे हम कि अल्कोहल का अमीन से ज्यादा होता है और अगर अमीन हो दोनों तो प्राइमरी का ज्यादा होता है सेकेंडरी से ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, इसलिए OH bond is more polar and forms stronger hydrogen bond than NH. Therefore, alcohols form stronger hydrogen bonds than amines. लिए ये होगा फर्स्ट केस में। और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अमीन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन द नाइट्रोजन एटम, तो वो ऑब्वियसली प्राइमरी में ज्यादा होंगे सेकेंडरी से, ये ऑर्डर रहेगा। सेकेंडरी अमीन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, फिर प्राइमरी अमीन और सबसे ज्यादा जो है वो अल्कोहल का। ये तो देखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये तो ऑड वन आउट है, तो बाहर हो गया पहले ही क्योंकि ये तो इनसॉल्युबल है पहले ही। इन दोनों की बात करोगे तो प्राइमरी अमीन इज मोर सॉल्युबल देन सेकेंडरी अमीन क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास in amine due to increase in size of the hydrophobic hydrocarbon part and with decrease in number of hydrogen bonds on the nitrogen atom which undergoes hydrogen bonding। तो इसलिए प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी उससे कम और एरोमेटिक अमीन सबसे कम, वो तो वैसे भी इनसॉल्युबल ही है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स समवट डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि बेसिक बेस क्या होता है पहले बताओ। यस बेटा, व्हाट इज अ बेस? लुईस बेस की बात हो रही है। लुईस बेस मींस डिफाइन लुईस बेस। यस बेटा, व्हाट इज लुईस बेस? डिफाइन। नहीं, लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस विच गिव्स विच गिव्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लुईस बेस बोलते हैं। तो देखो इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो, सारे ही बेस लुईस बेस हो सकते हैं। बट इसने पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा। प्राइमरी में एक ग्रुप रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन पे, इसमें दो ग्रुप रिलीज कर रहे हैं और टर्शियरी में तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। तो वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो वाटर क्या करता है का H प्लस, प्राइमरी अमीन उसका H प्लस ले लेता है तो बनता है ये सॉल्ट। ठीक है, और सॉल्ट इस तरह से अमोनियम सॉल्ट बना और साथ में OH नेगेटिव। तो इससे क्लियर हो गया कि वाटर में अमीन डालते हैं तो वी गेट OH नेगेटिव आयन, है ना। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस सॉल्यूशन अमीन का क्या होता है, बेसिक हो जाता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो
OH नेगेटिव के साथ क्या बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फेरिक क्लोराइड क्या बनाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी, ब्राउन पीपीटी। एसिड के साथ रिएक्शन करें तो भी ये इसका बेसिक नेचर शो हो जाएगा, इट विल रिएक्ट विद एसिड। अब में सॉल्ट वी विल गेट एल्काइल अमोनियम हैलाइड, डाई अल्काइल अमोनियम सल्फेट और ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्रेट। तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे आपको विद एसिड। तो ये जो अमीन सॉल्ट है, ये अमीन सॉल्ट है, अगर ट्रीट करें उसको बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इट रीजनरेट द पेरेंट अमीन। पेरेंट अमीन को रीजनरेट करेगा ये प्राइमरी अमीन, वाटर और NaX। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो अमीन की, उसको कैसे डिटरमिन करते हैं हम, Kb से, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। देखो RnH2 react with water to give RnH3 positive plus OH negative। नाउ लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के इक्विलिब्रियम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर तो बन जाएगा Kb, और Kb आ जाएगा RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई RnH2 कॉन्सेंट्रेशन। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी Kb की, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। इतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस। और pKb क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ Kb। जितना Kb वैल्यू हायर होगा उतना pKb वैल्यू लो होगा। मतलब Kb अगर इंक्रीज करता है तो pKb डिक्रीज करता है, और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। Kb जितना हाई होगा, pKb जितना लो होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। pKb जस्ट लाइक pH। pH क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस। वैसे pKb माइनस लॉग ऑफ Kb, pKa माइनस लॉग ऑफ Ka। पहला क्वेश्चन है कि एलिफेटिक अमीन्स क्यों अमोनिया से स्ट्रॉन्ग है एज अ बेस। बेटा जो एलिफेटिक अमीन है उसमें एल्काइल ग्रुप होता है, और एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रिलीज करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर इसकी तरफ रिलीज करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो इसको इसकी जो इलेक्ट्रॉन पावर है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन है जो हम बोलते हैं कि न्यूट्रल है, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता इसकी तरफ, है ना। तो इसलिए एलिफेटिक अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। As alkyl groups are electron donating groups, as a result electron density on the nitrogen atom increases, and thus they can donate the lone pair of electrons more easily than ammonia. This is the case in, अब मिथाइल अमीन्स और इथाइल अमीन्स की बात करें हम, तो मिथाइल की अमीन्स में केस है सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, एंड विच इन टर्न मोर बेसिक देन टर्शरी। इथाइल अमीन में क्या होता है, सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी, एंड टर्शरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मिथाइल अमीन्स है ना, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, इसमें जो H बॉन्डिंग है दैट इज डोमिनेटिंग फैक्टर। और इथाइल अमीन्स में इथाइल ग्रुप जो है उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, और बिकॉज ऑफ दिस प्लस मोर प्लस आई इफेक्ट इट इज मोर बेसिक। देखो, basicity of an amine in aqueous solution primarily depends upon the stability of the ammonium ion जो बनेगा ना। देखो R जो भी NH2 है ना, या NHR है, R2NH है, R3NH, वो वाटर से रिएक्ट करके ये बनाए। तो जितना स्टेबल ये अमोनियम आयन होगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी।
ठीक है, और कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर, ठीक है ना, ये बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया इसका। तो द स्टेबिलिटी जो है अमोनियम कैटायन की किस पे डिपेंड करती है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। पहला, प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो देखो, प्लस आई की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसमें है बताओ, इसमें तो एक ही एल्काइल ग्रुप है प्राइमरी में, सेकेंडरी में दो एल्काइल ग्रुप है, और टर्शरी में देयर आर थ्री एल्काइल ग्रुप्स। तो ऑब्वियसली प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा टर्शरी का। तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। ये ऑर्डर होना चाहिए एज पर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। बट दिस अलोन विल नॉट डिसाइड द ऑर्डर। ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं कि टर्शरी शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी, विच इन टर्न मोर बेसिक देन प्राइमरी। अब दूसरा है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो मैंने अभी बताया था आपको कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बोलो विच वन विल फॉर्म मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? नो, इट इज प्राइमरी। कि प्राइमरी में आप देखो ना कि, चलो मैं यही बना देता हूं, देखो प्राइमरी की बात करें, इसका अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे तो तीन एच होंगे ऐसे प्राइमरी में, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। सेकेंडरी की बात करेंगे तो ये दो पोजीशन तो ब्लॉक हो गई, दो ही बची ना। और टर्शरी की बात करेंगे तो ये तीनों पोजीशन ब्लॉक हो गई, सिर्फ एक ही बची। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा, प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होनी चाहिए, तो सबसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, तो प्राइमरी ट्यूब से जो कैटायन बना वो सबसे ज्यादा स्टेबल, से कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी। स्टेरिक की बात करें तो भी ऐसा ही होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किसमें होगी, साइज के कारण जो हिंड्रेंस होगी वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, टर्शरी में। तो उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा होना चाहिए। तो अब देखो सेकेंडरी सब में बीच में है, तो दैट विल टेक द एडवांटेज। इस तरह से सेकेंडरी अमीन तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, चाहे मिथाइल ले लो या इथाइल ले लो। देखो मिथाइल अमीन में भी सेकेंडरी सबसे आगे, इथाइल अमीन में भी सेकेंडरी सबसे आगे। बट जब हम बात करेंगे, देखो प्लस साई की बात करो, एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस, जो डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है अमोनियम कैटायन पे बाय द प्लस साई इफेक्ट, द एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, and thus on the basis of plus high effect alone, basicity जो है मीन की, that should decrease as per this। प्राइम टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। तो ये ऑर्डर हो जाएगा प्लस आई के अकॉर्डिंग। बट जब आप बात करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो stability of ammonium cation due to hydrogen bonding depends on the number of hydrogen bonds present on the nitrogen atoms। तो greater the number of hydrogen atoms on the nitrogen, more stable is the ammonium cation। तो इसलिए सबसे स्टेबल होगा प्राइमरी का, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम टर्शरी का। ये प्राइमरी की वजह से है, ये सेकेंडरी, और ये टर्शरी का लीस्ट स्टेबल। तो अमोनियम कैटायन derived from tertiary amines, there is some steric repulsion to hydrogen bonding, and therefore
स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, स्टेबिलिटी फर्दर डिक्रीजेस, एंड दस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक फैक्टर्स, जो बेसिसिटी है मीन्स की वो इस ऑर्डर में डिक्रीज करनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम इनको कंबाइन कर देते हैं सब इफेक्ट्स को, so we conclude that there is a combination of plus psi effect of the alkyl groups, hydrogen bonding and steric factors पूरे डिटरमिन करते हैं अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी का, एंड ऑल these three factors are favorable for secondary amine, इसलिए सेकेंडरी अमीन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, क्योंकि उसको कोई भी अगेंस्ट नहीं है उसके, इसलिए सेकेंडरी अमीन सबसे आगे रहेगा। अब अगर एल्काइल ग्रुप है स्मॉल, प्लस साइड इफेक्ट कम होगा बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस को ज्यादा प्रेफर करती है, प्राइमरी को, इसलिए सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आएगा, ठीक है। So there is no steric hindrance to hydrogen bonding and stability due to hydrogen bonding predominates over the stability due to plus psi effect of the methyl group. Hence primary amine is stronger base than tertiary amine. ये order होगा. But if alkyl group is somewhat large, bigger than methyl group like ethyl, propyl, so there will be some steric hindrance to hydrogen bonding and stability due to plus psi effect predominates over the stability due to hydrogen bonding, इसलिए टर्शियरी अमीन इस केस में मोर बेसिक हो जाएगा देन प्राइमरी अमीन, इसलिए सेकेंडरी के बाद टर्शियरी आएगा और टर्शियरी के बाद प्राइमरी आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जब मिथाइल था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइड कर रही थी ऑर्डर, और जब इथाइल आया तो प्लस आई इफेक्ट डिसाइड्स द बेसिक स्ट्रेंथ। सेकेंडरी तो सबसे आगे हो जाएगा क्योंकि नो फैक्टर इज अगेंस्ट इट, बट जो टर्शियरी और प्राइमरी की बात है तो उसमें हम इस तरह से चेक करेंगे। समझ में आया बेटा कि मिथाइल होगा जो कि छोटा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी और प्लस साइड इफेक्ट कम होगा, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रीडोमिनेट करेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आएगा उस केस में। और इथाइल अमीन की बात होगी, इथाइल अमीन्स की बिगर देन मिथाइल है, तो उस केस में हमें क्या करना देखना पड़ेगा, प्लस आई इज डोमिनेटिंग, और प्लस आई के अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, टर्शियरी, तो इसलिए सेकेंडरी के बाद उसमें टर्शियरी आएगा और फिर प्राइमरी। यस बेटा कर लोगे। बट अगर गैस फेज है तो गैस फेज या नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यू नो दैट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब वाटर हो, प्रोटिक सॉल्वेंट हो, बट नॉन एक्वस हो सॉल्वेंट या गैसियस फेज हो तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो सॉल्वेशन इफेक्ट जो है, हाइड्रेशन जो हो रही है एब्सेंट हो जाएगा, और इस केस में जो बेसिसिटी है डिपेंड करता है प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप। तो टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो दैट्स ऑल, इतना बेटा कर लेना, ठीक है। गैसियस फेज और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि ओनली प्लस आई इफेक्ट डिसाइड्स द ऑर्डर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है। तो इसमें चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, जो भी हो, टर्शियरी इज मोर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ओके ठीक है बेटा, इतना आप करके रखना, ठीक है। चलो बाय। थैंक यू सो मच।